Assalamu alaikum, respected teachers and students. Here is Professor Abdul Razak Chaudhary, and you are watching my channel Kashan Services Academy. Today, the topic is qualities of a good teacher. It is the saying of the Holy Prophet that teaching is the profession of the prophets. How the Holy Prophet said, "Indeed, I have been sent as teacher." Teaching इज अ नोबल प्रोफेशन, पैगम्बराना पेशा इसको कहा जाता है। हॉली प्रॉफिट ने खुद कहा कि मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया। सो अ टीचर हैज द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज शोल्डर। वी विल डिस्कस वन बाय वन। So, who will be an effective teacher? I have devised this formula by myself कि एक effective teacher वो होता है, first of all जो उसमें हमें चाहिए, that is command over subject, whichever is his or her subject, computer, physics, biology, chemistry, Urdu, English, जो भी subject है, he must have full grip over his subject. That is the first thing that is required by a teacher. Then plus pedagogical skills. Pedagogical skills means teaching skills, communication skills. He must possess the teaching और pedagogical skills. अगर उसके पास सब्जेक्ट पर तो उसकी बहुत अच्छी कमांड है, बट ही कांट स्पीक, ही कांट डिलीवर, देन वो भी सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा. सो first there is command over subject plus pedagogical skill multiplied by the attitude. So the most important thing is the attitude of the teacher. So many things comes under attitude. We will discuss later on that what is attitude means. So अगर हम एक टीचर की इफेक्टिवनेस को चेक करना चाहते हैं, हम उसको लेट से 100 में से 100 मार्क्स देते हैं कमांड ओवर सब्जेक्ट में. उसकी बहुत अच्छी कमांड है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट हिज सब्जेक्ट. देन हम उसको 100 मार्क्स देते हैं pedagogical skills में. He has a good pedagogical skills. He can communicate in a very effective way. हमने 100 में से 100 नंबर दे दिए, but his attitude is not good, is not according to standard. हमने उसको 0 मार्क्स दिए, तो what will be the ultimate result? That will be 0. So everything depends upon attitude. Now, the first thing about a good teacher is open to change. He must be open to change. He must not stick to the things. He must welcome the new ideas, the new techniques, the new technology. He must always ready to take up with the new changing environment and with the new changing demands of the society and of the world. So open to change is very important for the teacher. The second is a teacher is like an actor. एक्टर कैसे है एक टीचर? बेसिकली एक टीचर को परफॉर्म करना पड़ता है, एक टीचर को करके दिखाना पड़ता है. एक टीचर का काम ये नहीं है कि वो स्टूडेंट को बता दे, टीचर का काम ये नहीं है कि वो स्टूडेंट को समझा दे. टीचर का काम है कि वो स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेशन से, थ्रू एक्शन से वो चीज करके दिखाए. कैसे? अगर आप बच्चे को मछली के बारे में बताते हैं तो टीचर शुड बी लाइक अ फिश. टीचर को मछली बन जाना चाहिए. गुड टीचर वो होगा, इफेक्टिव टीचर वो होगा जिसको जो रोल मिले वो उस रोल में अपने आप को ढाल ले और वो खुद बन जाए. देन आपका स्टूडेंट जो है वो आपको आइडियलाइज करेगा और आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेगा. सो ही मस्ट बी अ गुड एक्टर. टीचर मस्ट बी अ एक्टर, एक्टर ऑफ द स्टेज. हिज क्लासरूम, the dais of the classroom is his stage and the students are the audience or the listeners. So he must be a good actor. Then a teacher is a supervisor. Basically his duty is to guide the students. His duty is to make the students independent. उसका ये काम नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ाता रहे, सिखाता रहे. ठीक है, ये है, but his primary duty is to make the student learn that how to learn, is to make them independent. कि उनको पढ़ना कैसे है ये उनको सिखाए, उनको सुपरवाइज करे, उनको हेल्प आउट करे. Then he must be an administrator and a manager. His duty is not only to teach but to administer. He has to coordinate with the class 4. He has to coordinate with the management. He has to coordinate with the account office, with the clerical staff, and with so many other activities. Like he has to manage some functions, some sports activities,
he has to organize some events like science fiction or other things. He has to deal with the society, with the parent teacher meeting, so he has to administer. He must be a good administrator for all these activities and a good manager. समटाइम एक फंक्शन हो रहा होता है, उस फंक्शन को पूरा ऑर्गेनाइज करना होता है, तो अगर टीचर में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजर की एबिलिटीज होंगी तो ही कैन मैनेज. अ गुड टीचर मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स. अ टीचर इंस्पायर करता है, अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, अपने स्टूडेंट को लर्निंग के लिए तैयार करता है बाय डिफरेंट टेक्निक्स. ही मस्ट नॉट बी अ बोरिंग पर्सन, ही मस्ट बी एन आइडियल पर्सन. अ गुड टीचर गिव्स होप. देखिए, टीचर का ये काम नहीं है कि वो हर स्टूडेंट को फिलोसोफर बना दे, हर स्टूडेंट को डॉक्टर बना दे. his duty is to deal the students according to his or her caliber. अगर एक स्टूडेंट जो है वो उसमें दो लफ्ज सीखने की सलाहियत है, तो टीचर का काम ये नहीं है कि वो उसको दो सफे जो है वो ठूंस दे, उसको पढ़ाए. नो, इट्स नॉट हिज ड्यूटी. हिज ड्यूटी इज टू डील द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज कैलिबर, अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी. अगर दो लफ्ज सीखने की सलाहियत है तो टीचर का काम है कि उसको दो लफ्ज सिखा दे ताकि वो कुछ ना कुछ सीखे और उसमें हो पाए. टीचर का काम जो है वो स्टूडेंट को जिंदगी की तरफ लेकर जाना है, वो स्टूडेंट को ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जाना है, उसको पेसिमिज्म से निकालना है और उसको ये रियलाइज करवाना है कि हर स्टूडेंट डिफरेंट एबिलिटीज रखता है. हर स्टूडेंट जो है वो टॉप नहीं कर सकता. कुछ एवरेज, कुछ स्लो लर्नर्स एंड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं. ही हैज टू डील द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर लेवल. Then a good teacher has to apply knowledge of different professions. A good teacher is like a doctor, is like a judge, is like an accountant, is like a juggler, is like an actor, is like a mechanic, is like a counselor, is like a psychologist. How this he must be the jack of all trades. How? Like a doctor. डॉक्टर क्या करता है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर सबसे पहले तशखीस करता है दैट वेयर इज द प्रॉब्लम, कहाँ पर प्रॉब्लम है, और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देता है. डॉक्टर्स तमाम मरीजों को एक ही ट्रीटमेंट नहीं देता. इसी तरीके से टीचर जो है अपने स्टूडेंट को मॉनिटर करता है और देखता है कि इस स्टूडेंट में प्रॉब्लम कहाँ पर है, कमी कहाँ पर है, और स्टूडेंट का स्पेसिफिक वीकनेस क्या है जिसको मैंने इंप्रूव करना है, और अकॉर्डिंगली फिर उसके लिए वो प्रिस्क्रिप्शन करता है. देन हाउ ही इज अ जज. A teacher has to decide so many things. A teacher has to make the decisions in the class. Class है, if there are 40 students in the class, he has to resolve the issues like a judge among the students. He has to perform the duty as an accountant. He has to do so many clerical tasks. उसको हाजिरी लगानी पड़ती है, उसको एकेडमिक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसको मैनेज और मेंटेन करना पड़ता है चीजों को, अकाउंटेंट की तरह एक्ट करता है. पर टीचर मस्ट बी लाइक अ जगलर. टीचर को एक मदारी की तरह होना चाहिए. आपने अक्सर देखा होगा मदारी का काम क्या है. मदारी जहां पर कुछ दिखा रहा होता है, लोग उसके गिर्द गिर्द इकट्ठे होते जाते हैं और लोग उसमें ऐसा खो जाते हैं कि अपने जरूरी काम भी भूल जाते हैं, उसकी मदारी में इतना खो जाते हैं. तो टीचर शुड बी लाइक अ मदारी. उसने क्लास में स्टूडेंट को ऐसे परफॉर्म करना होता है लाइक अ जगलर कि बच्चे जो हैं वो भूल जाएं कि वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, और पलक झपकना भूल जाएं और वो खो जाएं उस टीचर के नॉलेज में, और उस टीचर जो लर्निंग कर रहा है उसको मुकम्मल तौर पर सीख लें. एक्टर होना चाहिए, हमने पहले डिस्कस कर लिया. मैकेनिक होना चाहिए, फॉल्ट को तलाश करना और फॉल्ट को रेक्टिफाई करना और उसको दुरुस्त करना. ही मस्ट बी अ काउंसलर, ही मस्ट बी अ साइकोलॉजिस्ट. अगर किसी स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम है तो टीचर का ये काम नहीं है कि अंधाधुंध उस स्टूडेंट को पनिश करना शुरू कर दे, स्कोल्डिंग शुरू कर दे, या उसके पेरेंट्स को कंप्लेन कर दे. नो, दिस इज नॉट हिज ड्यूटी. हिज ड्यूटी इज टू एक्ट एज अ काउंसलर. हिज ड्यूटी इज टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द रीजन. क्या इस बच्चे को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या इस बच्चे के ऊपर कहीं वायलेंस तो नहीं हो रहा? क्या इस बच्चे को घर में कोई इशू तो नहीं है? he must act like a counselor, और उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए मुशावरत से, उस बच्चे के साथ बातचीत करके, और फिर उस चीज का सोल्यूशन निकालना चाहिए. और इसी तरीके से एक टीचर को
एक साइकोलॉजिस्ट की तरह वो एक्ट करता है, वो स्टूडेंट को गाइड करता है उसके मेंटल एबिलिटी और उसके एटीट्यूड के मुताबिक, दैट उसको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, उसको कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, और उसमें उसको हेल्प आउट करता है। ही एक्ट एज अ psychologist. So these are different professions. A teacher performs all these professions while living within his particular job, that is teaching. Then a good teacher should be smart. How? उसको बहुत खूबसूरत होना चाहिए। कैसे? अब सब लोग खूबसूरत नहीं हो सकते, कई लोग बहुत मोटे होते हैं, कई लोग बहुत उनका रंग इतना आइडियल नहीं होता, कलर इतना आइडियल नहीं होता। हो ही मस्ट बी अ स्मार्ट। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड वियर क्लॉथ्स दैट इज क्लीन, उसको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, एंड एक्सेप्टेबल बाय द सोशल स्टैंडर्ड्स, वो लिबास उसको पहनना चाहिए जो नीट एंड क्लीन हो और जो सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेबल हो, वो उसको लिबास पहनना चाहिए। सेकेंडली, स्टूडेंट को, टीचर को कुछ ना कुछ अपने बाल अच्छे बना के रखने चाहिए। अगर फीमेल टीचर्स हैं तो उनको अपनी ड्रेसिंग पर खास फोकस उनको करना चाहिए। आप देखें, आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, यू आर आइडियल फॉर देम, दे कॉपी यू, वो आपकी एक एक चीज को कॉपी करते हैं। और लड़कियां तो इतनी हद तक कॉपी करती हैं, वो अपनी टीचर्स की नेल पॉलिश से लेकर उसकी ड्रेसिंग से लेकर उसके बालों के स्टाइल और उसके स्पीकिंग स्टाइल को जाकर कॉपी करते हैं, और बच्चे आपकी मिमिक्री करते हैं घर में जाकर। सो यू शुड बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड वेरी अवेकनिंग। कैसे? आपको कुछ ना कुछ आप कॉस्मेटिक्स अपने ऊपर करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ अपनी ड्रेसिंग, अगर मेल्स हैं, अच्छी पैंट शर्ट, गुड लुकिंग, अच्छा, अच्छे बाल, अच्छा हेयर स्टाइल, अगर अपनी दाढ़ी रखी हुई है तो वो प्रॉपरली ट्रिम्ड होनी चाहिए। अगर आप क्लीन शेव हैं तो आप प्रॉपरली क्लीन शेव करके आए, ये ना हो कि आपके बाल जो हैं वो दाढ़ी के बाल जो हैं वो बड़े हुए हों। आप लड़कियां हैं तो ऐसे ना हो कि उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसे सुबह सुबह पराठे पकाती पकाती ऐसे मुंह धोया नहीं धोया जनाब, और वो भागम भाग जो है वो स्कूल में आज। नो, दे मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, they must use the cosmetics, creams, they must use different perfumes because there is a collaboration with the student. मुख्तलफ आप कॉस्मेटिक्स यूज कर सकते हैं। यू मस्ट बी गुड लुकिंग, जो अल्लाह ने बना दिया वो है, बट यू कैन मेंटेन योर सेल्फ, you can focus, you must focus on your personality, on your dressing, on your whole body, उसको आपको कुछ ना कुछ अच्छा रखना पड़ेगा। देन अ गुड टीचर शुड केयर हिज हर टीथ। देखें, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस इज वेरी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट, बट व्हाई आई हैव रिटन अबाउट द टीथ। उसको, अच्छे टीचर को अपने दांतों की बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, केयर करनी पड़ेगी। क्यों केयर करनी पड़ेगी दांतों की? देखें, टीचर क्या है, टीचर की जो पहली जो उसके पास चीज है वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग के जरिए उसने अपने नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना है, स्पीकिंग के जरिए इंस्ट्रक्शंस देनी है, स्पीकिंग से बोलकर सिखाना है, सब कुछ स्पीकिंग पर डिपेंड करता है। अगर टीचर के दांत कमजोर हो जाएं, अगर टीचर के दांत जो हैं, टीथ जो हैं वो गिर जाएं, तो आवाज में से कुछ साउंड्स जो हैं वो मिस हो जाती हैं। आपने देखा होगा जिन टीचर्स के दांत गिरे होते हैं, एक दो तीन, उन टीचर्स की स्टूडेंट को आवाज की समझ नहीं आती, क्योंकि कुछ साउंड्स दांत ना होने की वजह से वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती, और थूक गिरता है मुंह से निकल निकल कर वो बच्चों पर गिरता है। दैट इज वेरी बैड इंप्रेशन। एन इफेक्टिव टीचर शुड केयर हिज आर हर टीथ, हिज आर हर लंग्स, ताकि आपकी वॉइस क्वालिटी जो है वो आपकी बेहतर है। ओवरऑल टीचर की फिटनेस भी होनी चाहिए, बट लंग्स एंड टीथ, दीज आर वेरी स्पेशल विद रिस्पेक्ट टू टीचर। देन a good teacher love and pay respect to his students. A good teacher love his students, respect उसको देगा, और तो वो उसको सिखा पाएगा। अवॉइड फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म से बिल्कुल अवॉइड करें। फोकस अटेंशन ऑन द होल क्लास, तमाम क्लास के ऊपर अटेंशन जो है वो आप फोकस करें। A good teacher should be the master of co-curricular activities. That is very very important. टीचर का सिर्फ काम क्लासरूम में पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम है overall personality building of the students, and there are so many things for the personality buildings, like a teacher should be a singer, a teacher should be a sportsman, a teacher should be a debater, a teacher should be an actor, a teacher should be a dancer, a teacher should be a good speaker.
अगर ये क्वालिटीज उस टीचर में होंगी, देन ही कैन गाइड हिज स्टूडेंट्स, देन ही कैन प्रिपेयर हिज स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज के बगैर जो एजुकेशन है वो एक रटाची तोते की एजुकेशन है, और वो ओवरऑल पर्सनैलिटी बिल्डिंग में इतनी हेल्पफुल नहीं है। इसलिए अगर टीचर जो है वो इन क्वालिटीज को अपने अंदर रखेगा, तो वो स्टूडेंट को कुछ तैयार कर पाएगा। क्योंकि हमारे पास सेपरेट जो है वो ये अवेलेबल नहीं होते, ये चीजें जो है अवेलेबल नहीं होती, तो ये ड्यूटी भी टीचर को करनी पड़ती है। तो ही मस्ट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। उसको हर फन मौला जो है वो होना चाहिए, उसको गार्डनिंग आनी चाहिए, उसको क्राफ्टिंग आनी चाहिए, उसको मिट्टी का इस्तेमाल से मुख्तलिफ चीजें बनानी आनी चाहिए। इसलिए देखें, ऐसे नहीं इसको पैगंबराना पेशा करार दे दिया गया, ऐसे नहीं इसको नोबल प्रोफेशन करार दे दिया गया, ऐसे टीचर की अजमत इतनी नहीं है। इसकी रीजन ये है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है, टीचर की डिमांड्स, टीचर से तवक्कात इतनी है, इसीलिए इसका रुतबा इतना है। सिर्फ नाम की वजह से कि ये टीचर है उसका रुतबा नहीं है, उसके रोल की वजह से उसका रुतबा है, और उसका रोल अच्छा बनाने के लिए ये चीजें जो है वो टीचर में होनी चाहिए। Effective classroom management. A teacher should ensure effective classroom management. What do we mean by effective classroom management? क्या अगर पिन ड्रॉप साइलेंस हो क्लास में, सारी क्लास चुपचाप बैठी हो और टीचर बोल रहा हो और वो टीचर को सुन रही हो, is this classroom management? No, not at all. This is not classroom management. What is classroom management? That he creates a safe and comfortable learning environment. There is an environment of learning. अगर शोर है, वहां पर हल्ला गुल्ला है, भागम भाग है, no, uh, it should be there. If it is helpful for learning, it should be there. Nice should be there if it is helpful for learning. And if you create some activities where there is some noise, where there is some music, or where there is some running, or where there is some activities, there is not like a discipline, then these are very helpful for the learning, and these should be there. Then he is creative and imaginative in daily lessons. अगर वो creative होगा, imaginative होगा, then he can ensure the classroom management. A good teacher should know the names of the students. पीछे हमने बात की कि a teacher should pay respect to his students. अगर वो टीचर अपने स्टूडेंट को उसके नाम से पुकारेगा और उसके पूरे नाम से पुकारेगा, कोशिश करें कि स्टूडेंट के नामों को याद करें और उनको उनके पूरे नामों से पुकारें। स्टूडेंट विल फील ऑनर, ऑनर फॉर हिमसेल्फ एंड ऑनर फॉर यू। दिस इज, कहते हैं अगर आपने किसी के दिल में घर करना हो तो उसको उसके पूरे नाम से पुकारना शुरू कर दें। दैट इज अ गुड टेक्निक एंड दैट कैन बी यूज्ड बाय द टीचर। he should give clear instructions. अगर आप कोई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी वेरी क्लियर। अगर इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगी देन एवरीबॉडी नो व्हाट इज हिज रोल, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, वो उसमें जो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो कायम रहेगी। A good teacher is a researcher. Yes, he is a researcher in that school or college or that institution. How he has to face different problems, and as a researcher, acting like a researcher, he has to make the solutions. लोकल जगहों पर लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको कोई ऐसे सेट और फिक्स रूल नहीं होते, सो यू हैव टू एक्ट लाइक अ रिसर्चर एंड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन. A good teacher is a role model. Yes, we have already discussed that he is a role model for the students. Students उसको idealize करते हैं, उसको copy करते हैं, so he must act as a role model. A good teacher has good sense of humor. देखें, टीचर को जिंदा लाश नहीं होना चाहिए, टीचर को बड़ा इनोवेटिव, हंसमुख सा, स्मार्ट, फैबुलेंट, बहुत ही एक खूबसूरत और एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिसमें गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हो, ताकि जब वो अपना सब्जेक्ट बताए तो वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताए। वो अगर जैसे हमने बात पीछे मछली की थी, अगर जहाज की बात आती है तो वो जहाज बन जाए क्लास में। He must have a good sense of humor. He must not bore his students. आपका काम रोबोट्स से डील करना नहीं है, आप जीते जागते इंसानों से डील करना आपका काम है। और जो जीते जागते जो इंसान हैं उनको आप मैकेनिकली चीजें नहीं दे सकते, आपको उनको चीजें जो हैं वो
इंटरेस्टिंग बनाकर और अच्छे अंदाज में with a good sense of humor you have to convey. So this is one of the qualities of a teacher. Then the 16th one, a good teacher has effective pedagogical skills. What do we mean by pedagogical skills? These are the teaching skills, different tactics, techniques of teaching, जिनके जरिए आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन इज वर्बल एंड वन इज नॉन वर्बल. नॉन वर्बल में आपकी ड्रेसिंग, आपको फेस, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी मूवमेंट्स, द मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड्स, द मूवमेंट ऑफ योर आईज, ये आ जाती हैं. और वर्बल में आपकी जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज और आपके वर्ड्स के जरिए जो आप कम्युनिकेट करते हो, दैट कम्स अंडर, एंड बोथ दीज कम्स अंडर pedagogical skills. A good teacher has latest IT skills. So this is the world of science and technology, and IT is the gateway to the modern world of science and technology. अगर किसी टीचर को IT नहीं आती तो वो एक अच्छा टीचर कभी नहीं हो सकता. देखिए, मैं ये लेक्चर आपको कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, थ्रू IT. कोरोना आया, पिछले 2 साल हो गए. वो टीचर्स जो आईटी के साथ लिंक्ड नहीं है, दे कांट डिलीवर इन एन इफेक्टिव वे. हम देखें, ये लेक्चर अब आपके पास पहुंच रहा है, दैट इज थ्रू आईटी स्किल्स, बिकॉज आई एज अ टीचर I have equipped myself with the latest pedagogical as well as IT skills. Both these are compulsory. Information technology skills. You must have a full grip on the computer, on the use of computer, internet, and all these, like these Zoom meetings and all the functions which are useful for teaching related to IT. You must equip those functions. Okay, respected teachers, these are the 17 qualities I have listed, and there are few sub points among these qualities. I hope this will be a good lecture for you. If there are some questions, there are some specific questions, you can ask me in the comment section. I will respect your questions and I will try to answer. Take care. Allah Hafiz.